मैं बताना चाह रहा था कि डेंगू मास्टर ट्रेनर भी हैं, इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, और हमने देखा कि अपने बिजी स्केड्यूल में से कोशिश करती हैं कि डाइवर्स टॉपिक्स पे बात करें, और अब कोरोना के हवाले से भी बहुत जिम्मेदारी से इन्होंने काम भी किया। अब हम जनरल ओवरव्यू ज़रूर चाहेंगे कि वो कोरोना का हमें दे दें, लेकिन कुछ टॉक हो रही है कोगुलोपैथी की, तो उसको भी ये इंशाल्लाह टच करेंगी। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार। Thank you very much, Dr. Naeem. It's always a pleasure to come here among all the family physicians from Doctors Con Forum. और चीमा साहब एंड आफ्ताब साहब both are very kind, हमेशा हमें बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ आके बात करना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब एक्टिव लिस्टनर्स होते हैं। मुझे सोए हुए लोग नज़र नहीं आते हैं, मुझे इंक्विजिटिव लोग नज़र आते हैं, इंटरैक्टिव ऑडियंस मिलती है। तो फिर आप जब इंटरैक्ट करते हैं तो आपको मज़ा भी आता है, पढ़ाने का भी, बताने का भी, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने का। सो आज की टॉक भी हम थोड़ी इंटरैक्टिव रखेंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेरीज हैं अबाउट कोविड, बिकॉज आपको पता है कि पिछले साल से तो हम सबसे ज़्यादा इसी की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे नई साइंटिफिक रिसर्च आती रही, नया लिटरेचर हमारे सामने आता हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत से मिसकंसेप्शंस जो थे शुरू में वो क्लियर हो गए हैं, कुछ नई अद्वियात आई जो ट्राई हुई, फिर पता चला उनका फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा। तो हम कुछ एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट regime for managing patients of COVID in outpatient department, and out of these, which are the ones who should be hospitalized and how to manage them. So this is the talk today. So starting with taking you back to 2019, when life was normal. Life was normal because there was activities going all around you. हम बाज़ार भी जाते थे, हम शादियाँ भी अटेंड करते थे, हम बाहर के टूर पे भी जाते थे, हॉलीडेज़ पे भी जाते थे, हम अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेसेस पे भी फ्री होके जाते थे. But suddenly, world changed. And the world after COVID-19 is the new world. So वो जो हम अपनी आँख से हर किस्म की एक्टिविटी होते देख रहे थे, जिसमें म्यूजिक भी था, डांस भी था, पैरा ट्रूपिंग भी थी, सोशल इंटरैक्शन भी था, ट्रैवल भी था, वर्क भी था, it changed to a masked life. And this is how we stand here today with the mask on. And this is the new normal. So this is the new normal life that we all have to live and adopt to. That is life after Corona. So the first Corona case was registered, and this became the cover story of all major publications. आप टाइम्स की बात करें, या आप फैशन मैगजीन्स की बात करें, या आप मेडिकल लिटरेचर की बात करें इन द फॉर्म ऑफ VMJ, या आप पॉलिटिकल न्यूज़ कॉर्नर की बात करें, या आप पाकिस्तानी जर्नल्स की बात करें. So the only topic which they wanted to talk about was COVID-19. And this was the top story of every talk show, of every radio show, of every seminar, of every webinar. And from December 31st, 2019, when China gave this alert to the World Health Organization of several cases of pneumonia being reported to them in Wuhan, the disease was then later labeled on as COVID-19. COVID stands for coronavirus infectious disease, and 19 is the year in which it was reported. So the China announced its first death related to COVID on January 11, and on January 13, WHO reported that this has spread to the other parts of the world as well, and Thailand also reported a case. Then on February 26th, NIH USA also labeled one single patient of COVID, and then an emergency treatment drug, antiviral, which is remdesivir, that was developed initially to treat Ebola virus, another very, very deadly virus. It was thought to be a potential treatment for COVID-19. Then FDA took the steps to expand this novel coronavirus testing to hospitals, clinics, microbiological lab setups, and on March 11th, they declared it as a pandemic. So this is a disease which is once in a century pandemic, which has affected all over the globe and caused many casualties. In April
on 2nd of April, confirmed cases reached about 1 million people around the world. And on April 10th, the global deaths due to COVID were more than 100,000, labeling this disease as one of the most catastrophic pandemics that we have experienced in our life. On 25th of February, which is 2 days ago, there have been number of cases are constantly rising, and the deaths reported by WHO. These are all from the dashboards. You can usually see them online. And fortunately, Pakistan is not in the list, which is among the top countries hit by COVID-19. But we did have few cases of COVID-19 in Pakistan, and about 5,75,941 cases have been reported, and we have lost about 12,772 people. They are all very precious lives. Some of them are very young and healthy adults who fell victim and prey to this virus, and all of a sudden we lost them. So it's a very devastating state right now, but with every challenge comes hope. And the hope is that now we know what this virus is, and we know how to prevent it, and we know how to diagnose it, and we know how to treat it. So this is a good news, and today I will be sharing with you the updates in the management of COVID-19. कोरोना वायरसेस पहले भी हमारे पास बहुत से आए हैं. आपको याद होगा मर्स कोरोना वायरस था जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करता है, which was spread through camels. Then we had civet cats spreading a virus in the form of SARS, जो हमारे पास आया और respiratory illness किया था. So this is new virus of corona. This is from the family of coronavirus. It's an RNA virus, and it has got many serotypes, and it consists of 2 proteins. The name corona stands for crown-like. So it has spikes protein, which is a glycoprotein rich glycosylated located on the outer membrane. ये जो है ये spikes नजर आ रही हैं. This is the S glycoprotein. और इसके अंदर एक matrix protein होती है जिसे हम M glycoprotein कहते हैं, which is inside the cover. And the infection it causes is mainly by respiratory droplets. So when you talk, when you laugh, when you speak, when you breathe, the small particles of the virus travel in the air, and they can infect the other person who is in close proximity to you. That's why we all wear masks to protect ourselves. Another mode of transmission is the contact, which is less as compared to the respiratory route, which is when you speak and the virus or the respiratory droplets, they settle on the surfaces and somebody else touches these surfaces and touches mouth, nose or eyes, then it can transfer. So that's why we give so much importance of hand hygiene and washing your hands again and again, and undue touching of surfaces, frequently touched surfaces like these tables, laptops, mic, and phones, and undue touching of your mucous membranes like mouth, nose or eyes should be avoided. And this should be educated to your patients who are coming to your clinics as well, that even if you are not symptomatic or the other person is not symptomatic, you have to maintain a safe distance, you have to wear a mask and frequently wash your hands. Let's not go into the details how the virus replicates and how it infects, because I think this is some microbiology which you might not be very much interested in, because you are more interested in the clinical part of this disease. So when do you suspect that you have a COVID patient? What test would you offer and how will you confirm that? This is that I'm going to talk about today. Any patient with an acute illness, this is an acute febrile illness. Just like other viruses, it causes non-specific symptoms like fever, body aches and pains, headache. But a major component is respiratory. So it can cause cough, sore throat, shortness of breath, and flu-like illness. Some of the patients, they also present to you with abdominal symptoms like diarrhea, abdominal pain, and nausea. And a very peculiar symptom which has emerged and linked with this disease is loss of sense of taste and smell. So these are some of the features. If there are any two of them are present, then especially in a patient who has a contact history with COVID-19, or who is living in an area where active cases of COVID-19 are present all around and the community transmission is going around like we are in Lahore at the moment, then they should always suspect, and your top priority of suspicion should be COVID-19 in this scenario. Sometimes what happens is the patient doesn't have typical signs and symptoms, no fever, but
when you get an X-ray, you have this patch. So patient comes to you with, for surgery of appendix, but you get an X-ray and you see this picture. Sometimes patients come to you with myocardial infarction, chest pain, and when you get an X-ray, you get this. So we have patients directly coming to the corona counters in hospitals, and we have patients who are transferred from other specialties. They went to neurology with stroke, came out to be corona. They went to cardiology with angina, but on X-ray it was corona. They had treatment for heart failure going on for 2 weeks, but X-ray is showing COVID symptoms. So the high degree of clinical suspicion, even if the patient is not PCR positive, should be labeled as a probable case of infection, and confirmed is the one which has active infection, which can be detected by PCR, and antigen is also available now in some parts of the country. So clinical classification. The classification, majority of the patients that you come across say, मुझे तो कोई बुखार नहीं लगता, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मेरी अम्मी को कोविड था और मैं उनके साथ था, मेरा भी PCR पॉजिटिव आ गया. So a large chunk of people can be asymptomatic. But some people, they show symptoms which can range from mild illness to very severe or critical illness. So the spectrum is large, like other viral illnesses, completely asymptomatic to completely critical patient. And you have to, gauge the patients according to some clinical signs and symptoms, which I will touch in some time. So if a patient has no symptoms but the PCR is positive, it is asymptomatic COVID. If the patients have symptoms suggestive of COVID-19 like mild cough or sore throat or fever, but he is stable vitally, there are no or minimal X-ray findings, and the patient's saturation is maintained at room air of more than 93%, you label these patients as mild disease of COVID-19. 93 or above. Moderate are those patients who have symptoms of COVID-19, but they have hypoxia. But the hypoxia is not very severe. And the saturation is between 90 to 93% on room air. Patients have infiltrates on chest X-ray, but they are less than 50% of the lungs infiltration. And there are no complications in the patients like involvement of other organs in the form of ARDS, in the form of multi-organ dysfunction or thrombosis. Severe patients are those patients who have a very high respiratory rate, usually more than 30 breaths per minute. Oxygen saturation is less than 90% on the room air, and X-ray involves more than 50% of infiltrates. So any of the following: asymptomatic patients with the high respiratory rate, with either a high respiratory rate or a saturation of less than 90% or more than 50% involvement, they are severe. And the criticals are ones who have any of the three manifestations: ARDS, which is acute respiratory distress syndrome, multi-organ dysfunction, and the commonly organs that are involved are your liver and your kidney and heart, and septic shock, because when the patients go into sepsis and septicemia, ultimately it leads to circulatory collapse and the patient presents with shock. So which are the patients who should be admitted, and which are the ones which you can all manage in outpatient basis or in home isolation? So patients of asymptomatic who just were a contact of somebody and who were either travel history के साथ उन्होंने check कराया तो निकल आया, they can be managed at home. If they do not have a facility to isolate themselves, government has provided isolation facilities as well. Mild disease patients can be also managed at home, but very careful monitoring of these patients is required, and they should remain in touch with their treating physicians. Via technology अब तो बहुत आसान है, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं चीजें. So they have to remain in touch with their physicians because they can deteriorate anytime and progress to moderate or severe disease in the course of illness. The moderate disease patients, which were the moderate disease ones? What was the criteria? 90 to 93%, less than 50% lung infiltrates. These are the patients who should be admitted to hospital. Anybody who requires oxygen should be hospitalized. It is not advisable to keep them at home, but if they are very well educated and if their oxygen requirement is less than 3 liters, they can be managed at home. If their oxygen requirement increases on daily basis and it is more than 5 liters, they should never be advised home isolation.
Then patients who have severe disease which have less than 90% saturation, they should be admitted to high dependency units. And patients who have critical disease in the form of ARDS, septic shock, or anything multi-organ dysfunction, they should be admitted to ICU settings. प्रोफाइलेक्सिस, बहुत बात हुई शुरू में, आपको याद होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ने धूमें मचा दी, सारी जगह से स्टॉक लोगों ने उठा लिया, हर बंदे ने अपने घर में दवाई खरीद के रखना शुरू कर दी, पेपर्स आ गए, इसका इलाज भी निकल आया, टीवी प्रोग्राम्स में भी डिक्लेयर हो गया कि जी हर बंदा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ट्रंप ने कह दिया और तो और. एंड देन वी केम टू नो दैट इट हैज नो रोल. पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट प्रोफाइलेक्टिकली, और अजीब अजीब डोजेस की रजीम थी, कोई हफ्ते में 1 दफा, कोई हफ्ते में 3 दफा. So this has no role in prophylaxis. In vitro कुछ studies हुई hydroxychloroquine, chloroquine पे that they cause viral inhibition, but they were not proven in humans, and it is not advised to take anything prophylactically. ये खत्म हुआ तो ivermectin का धूम मच गई. अब आपने आजकल देखा होगा हर बंदा ivermectin के पीछे. Ivermectin has some promising results, but मैं हर लोग मेरी बहुत डॉक्टर से भी इस बात पे लड़ाई रहती है. Unless and until something is not part of the standard care of treatment or standard guidelines, you cannot experiment it on yourself or your patients. Patients are not guinea pigs. You cannot experiment with them unless and until you have a proven document showing its efficacy, which is, देखा गया है World Health Organization से, FDA से, या आपकी national guidelines की कमेटी ने उसको review करके उसको बताया है कि ये आप use कर सकते हैं. Please discourage use of such things. Professor Saqib Saeed is a very senior pulmonologist, and we often talk about it, and he calls everything else than the standard care of treatment a gimmick. So he says जो लेना है, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लेनी, पैनाडोल ही लेनी है आपने. अगर आपको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, आपने ऑक्सीजन लेनी है. कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको हम फिर एडिक्वेटली एड्रेस करते हैं. So there is also no specific treatment for COVID-19. रेमडेसिविर की बहुत बात चली, उससे पहले एक्टेमरा का आपने बहुत शोर सुना, टोसिलुजिमैब. There are only specific indications. हर मरीज को under the blanket सब कुछ देने की जरूरत नहीं होती है. So montelukast, colchicine, ivermectin, statins, famotidine, chloroquine, hydroxychloroquine, nothing has been proven to act against this virus or slow the progression of the disease. रेमडेसिविर के जो पहले ट्रायल्स आए थे वो encouraging थे, लेकिन जो बाद की जितनी स्टडीज आई हैं उन्होंने शो किया that it is not of any benefit. It just shortens the viral clearance time by 2 days. And if given very early on in the disease. So जो patients hospitalized हो जाते हैं, जिनकी disease progress कर गई होती है, जिन्होंने हफ्ता गुजार दिया होता है, उनमें there is no point in giving remdesivir to these patients. There was no role established of remdesivir in severe and critical disease, and it should not be given in these patients. Coming on to the management. Most of the viruses की तरह हमारे पास इसके लिए भी कोई दवाई नहीं है. So what we give is a symptomatic treatment that includes fever को कम करने के लिए आप acetaminophen या Panadol दे सकते हैं. अगर patient को abdominal symptoms और diarrhea है, you can give rehydrate the patient. अगर cough, sore throat, irritation है तो आप antihistamines दे सकते हैं. Moderate, severe and critical disease needs hospitalization, and they should all be managed in a hospital setting with trained staff which are trained to deal with COVID-19 with proper infection prevention and control measures in place. They also need supportive therapy, but these patients are assessed for a peculiar phenomena which is peculiar to some of the viruses. मैं क्योंकि डेंगू से बहुत एसोसिएट होती हूँ, तो आपको याद होगा हम डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्रिटिकल फेज की बात एक करते होते थे, इसमें हम कहते थे साइटोकाइन स्ट्रॉम आया. सो इस वायरस के साथ भी एक साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम एसोसिएटेड है, और उसमें पेशेंट्स को परसिस्टेंट फीवर होता है, दे हैव वर्सनिंग हाइपोक्सीमिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड देयर इज इंक्रीजिंग इन्फिल्ट्रेट्स ऑन द चेस्ट एक्सरे. दैट इज, यू कैन से, द बर्नआउट फेज ऑफ द डिजीज, जिसमें एग्जैजरेट हो जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, प्रोग्रेस कर जाती है रैपिडली. So in patients को identify करने के लिए we have certain markers, and these markers are markers of inflammation which give you an idea that there is severe inflammatory reaction going on in the body. This is either in the form of C-reactive protein, which you all know is an inflammatory marker. Serum ferritin is an inflammatory marker, and then
lactate dehydrogenase because it shows the blood breakdown. And D-dimers. This has also emerged as one of the tests which can give you a clue that the patient is going into critical disease, because this disease is not only a respiratory disease anymore, it is a thromboembolic disease, a vascular phenomena which goes on in these patients. And these tests, along with the chest X-ray, which have progressively increasing infiltrates, gives you an idea that this patient is going into cytokine storm. And to decrease this cytokine storm, you have to give some anti-inflammatory, and for this we give tocilizumab. So every patient doesn't need tocilizumab. Tocilizumab doesn't have any prophylactic के CRS में नहीं जाएगा, पहले से दे दें. No role. So if you have rapidly increasing markers, worsening of the clinical conditions, and infiltrates are increasing or worsening, you repeat them on 24 hours basis, then you can give these patients tocilizumab. डॉक्टर उनके लेवल्स कब कहते हैं कब वर्सनिंग तो कितना जी मैं आपको भी बताने लगी हूँ. And you can also get interleukin 6 levels in these patients. They are now available. Initially सिर्फ शिफा और आगा खान कर रहा था, उनके पास भी थोड़ी किट्स थी, but now they are frequently being done. चुगताई भी, शिफा भी, आगा खान labs IL-6 levels कर देती है. IL-6 is interleukin 6, which is also a marker of inflammation. और इसमें देखा गया और भी इंटरल्यूकिन्स और TNF इंक्रीज होते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में, बट इंटरल्यूकिन 6 सबसे ज्यादा रिलीज होता है. तो अगर IL-6 के लेवल्स बहुत ज्यादा है, मोर देन डबल है, तो आप इनको दे सकते हैं टोसिलिज़ुमैब. पेशेंट्स की CRP मोर देन 70 हो, CRP मोर देन 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर हो, पेशेंट्स के D-डाइमर्स जो हैं उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, ठीक है, और पेशेंट्स के सीरम फेरिटिन जो है वो मोर देन डबल हो, और इनका ये है कि आपने आज कराया और अगले दिन रिपीट कराया और इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये नहीं कि 70 था लेकिन आपने कल कराया तो 40 पे आ रहा है, then you don't give. So if it's an increasing trend, then you can give these patients. So coming on to the other treatment modalities, रेमडेसिविर का मैंने आपको बता दिया कि क्या फायदा है. जो अर्ली ऑन बिल्कुल डिजीज में देना चाहते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन की वायरल क्लियरेंस को अर्ली कर देता है. टोसिलिज़ुमैब की मैंने आपको इंडिकेशंस बता दी. ट्रीटमेंट जो हमें हेल्प कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. आई एम वर्किंग इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल, व्हिच इज द डेजिग्नेटेड कोरोना हॉस्पिटल, केटरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स थ्रू आउट द प्रोविंस. अभी भी हमारे पास 161 पेशेंट्स कल के दिन में एडमिटेड हैं, परसों 185 पेशेंट्स एडमिटेड थे. Every day we receive about 40 to 45 patients and we admit about 25 to 30 patients every day. So we are constantly looking at the patients, and over the past year COVID जितना हमने देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी और सेंटर ने उतना देखा होगा. The only thing which helps is early recognition and early oxygenation of the patient at the right time. So oxygen therapy delivered in an escalating manner and managing these patients on oxygen has helped a lot of patients with careful monitoring obviously of the inflammatory markers. So ये आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसके बहुत सारे रूट्स हैं. आप नेजल कैनुला से देख सकते हैं, फेस मास्क से दे सकते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क होता है जिससे आप हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला है, कुछ सेंटर्स में अवेलेबल है, उससे दे सकते हैं. और फिर CPAP एक मोडेलिटी होती है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. उसमें मास्क के जरिए आप वेंटिलेटर से हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं. इट इज अ नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन दैट यू कैन ऑफर टू दीज पेशेंट्स. दे हैव रियली हेल्प इन दीज पेशेंट्स एंड वी हैव रिवर्टेड मेनी पेशेंट्स. Once the patient goes to invasive ventilation, we could hardly save any patients. The earlier we pick up these patients and manage them, it's better the prognosis. The second remarkable discovery, which is a very old time tested drug but very misused in our country, is the steroids. So steroids, dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, they are the drugs of use and abuse. आप किसी भी बंदे को पूछ लें जो कोविड है, वो पहला सवाल आपसे करते हैं, डॉक्टर साहब स्टीरॉइड लगा लें. सो स्टीरॉइड्स के मिसयूज पे मेरा ख्याल है मैंने बेशुमार वीडियोस भी बनाई, बेशुमार फोरम्स पे इसकी एडवोकेसी भी की कि खुदारा सिर्फ वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर मेंटेनिंग saturation of more than 93%, they benefit from steroids. हर बंदे को अंधाधुंध स्टीरॉइड ना दीजिए. माइल्ड सिम्टम्स पे there is no indication of giving steroids. But those patients who are already on steroids for other ailments like rheumatoid arthritis, like interstitial lung disease, like asthma, they can be
continued on the steroids. There's no need to increase the dose of steroids. There's no need of any pulse therapy to these patients. Patients who require oxygen or who have very high level of CRP, more than 70, or who have worsening infiltrates, they can be given steroids. Steroids should be given only for 5 to 7 days. Only for 5 to 7 days, maximum 10 days. If you have to go beyond 10 days, sometimes we do need these patients on steroids for a longer time. This has to be under a specialist care, because steroids has two major side effects in these patients. One, these patients, they delay the viral clearance. Steroids delay the viral clearance. Second, they can cause immunosuppression and patients then land up into sepsis. Third, majority of the patients who are hospitalized have a comorbidity like hypertension, ischemic heart disease, or diabetes, and it worsens both your diabetic control, your blood pressure control, and thereby worsening your heart disease. So steroids, मेरा अगर आज एक मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहूँ, जो याद कर लें आप, वो ये है कि steroids के मिसयूज को प्लीज आप इसको अवॉइड कीजिए. तो डेक्सामेथासोन मैंने आपको बता दिया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, ओरल प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, एंड यू डिसकंटिन्यू द स्टीरॉइड्स फॉर 5 days और मोर, एंड यू गेज देम बाय इंप्रूवमेंट इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ योर CRP levels. Now comes another magic discovery, which is the role of anticoagulants in COVID-19. So अगर आप मेरे ट्रीटमेंट वाली स्लाइड पे जाएं, तो मैंने ट्रीटमेंट में आपको 3 बातें बताई हैं. जो रेमडेसिविर है वो भी मैंने ट्रीटमेंट की एडिशनल बताई है. टोसिलुजिमैब भी मैंने आपको ट्रीटमेंट से अलहदा बताई है. जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसमें आपने ऑक्सीजन देनी है, if needed moderate to severe disease steroids देने हैं, और third is the role of anticoagulants in the COVID. COVID is associated with increased risk of thrombotic complications, including venous thromboembolism, and this has been established by एक इटली की आपने स्टडी देखी होगी जिसके अंदर उन्होंने पेशेंट्स का पोस्टमार्टम के ऊपर देखा कि thrombosis था, and this thrombosis is not limited to one part of the body. We have seen patients presenting with MI, lead coronary thrombosis की वजह से. We have seen patients with stroke, आपकी cerebral perfusion कम हो गई thrombosis की वजह से. We have seen patients with intestinal pain, intestinal ischemia. So this thrombotic complications is now a well-established factor, and we all know that viral infections triggers the production of inflammatory cytokines, and these inflammatory cytokines, they activate the coagulation factors and they can initiate coagulopathy. So severe COVID-19 has been a predisposing factor for thrombotic and embolic conditions and complications, and retrospective analysis shows that people who died due to COVID-19 had high FTP levels and high D-dimer levels as compared with the survivors. So when we compare the patients who could not cope up with COVID-19 and who recovered, there's a marked difference in the D-dimer levels and FTP levels, which are markers of coagulopathy. So there's also a direct effect of viral infection on the venous thromboembolism mechanism. So we all know that this virus actually attaches to the ACE2 receptors, and ACE2 receptors, because they are present in your lungs in more quantity, so therefore it causes a respiratory problem. एक इससे एक बहुत और अच्छी importance मुझे बात याद हुई. We have seen many of the patients of new onset diabetes mellitus or pre-diabetics becoming diabetics during COVID. अब इसके साथ 2 चीजें associated. एक तो steroid unmask कर देती है, दूसरा ACE2 receptors are also seen in your pancreatic beta cells. और इन पे जब वायरस जाके अटैच होता है तो उसका डिसफंक्शन करके भी न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज को रिपोर्टेड है कोविड-19 के साथ. सो ये भी आपने दिमाग में रखना है कि इन पेशेंट्स की शुगर लेवल जरूर चेक कराएं. HbA1c अगर करा लें पेशेंट अकॉर्डिंग है, उससे पता चल जाएगा कि प्री डायबिटिक रेंज में था या नहीं था. आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स जो कभी प्री डायबिटिक रेंज में भी नहीं थे एंड दे बिकेम डायबिटिक. स्टीरॉइड्स विदड्रॉ करने के बाद भी उनकी रीडिंग्स हाई आती रही हैं. सो बिकॉज दिस ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जब SARS-CoV-2 वायरस लगता है, it causes inflammation, endotheliitis, and this all leads to a procoagulant state, and these patients then become, thromboembolic complications इनमें देखी जाती हैं. यहाँ पे वो
इटली वालों ने पोस्टमार्टम स्टडी जी मैंने अभी कोट की, उसमें इसका बैक्टीरियल रोल भी एस्टैब्लिश जी कुछ ऐसे केसेस में बैक्टीरियल रोल भी जी। वो उसके बारे में वायरल जो है, वायरल इन्फेक्शंस जब भी बॉडी के इम्यून सप्रेस करते हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं। इससे बहुत मजेदार एक चीज, मैं मजेदार तो नहीं, इट्स अ सैड इंसिडेंट आई वांट टू कोट ओवर हियर। मैंने 1-2 मीटिंग्स में अभी भी कोट किया। देयर वाज दिस डॉक्टर साहब फ्रॉम निश्तर एंड आई हैव द कंसेंट टू टेल दिस टू पब्लिक बिकॉज किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला भी होता है। आई एम पब्लिशिंग दैट केस रिपोर्ट एज वेल, who was given andhadhund steroids for treatment of COVID-19, young 38 years old doctor, never on oxygen therapy, and he developed fungal infection, maxillary sinus involved हुआ, सारी bone resection surgery हुई, पूरा face involve हो गया and उनके fungal biopsy के ऊपर fungal infection आए and we treated him with voriconazole. Alhamdulillah he is fine now, but we had to reject his whole face just because of misuse of steroid in a healthy doctor. So please be aware of this. I have seen 4-5 patients of aspergillosis, secondary fungal infections after steroids used in COVID-19. So be very, very vigilant in these patients, especially diabetic patients. Okay, so we all know that COVID-19, it affects every age group and every sector and every gender. एंड एक ये एसोसिएशन के जी, मुझसे अभी किसी ने एक वेबिनार में सवाल किया कि डायबिटिक्स को कोविड ज्यादा होता है या हाइपरटेंसिव्स को कोविड ज्यादा होता है. सो देयर इज नो स्टडी प्रूविंग दैट डायबिटिक्स आर मोर प्रोन टू डेवलप, but yes, they are more prone to develop severe disease and complications, and rate of hospitalizations of comorbid people like hypertensive, diabetics, ischemic heart disease patients, kidney disease patients, CLD patients are more because they have already immunosuppressed state, and if there is another infection going on, their condition worsens. So you should keep in mind that they do not increase the risk of catching the infection, but they have more risk of developing a severe disease and more hospitalization. एक और सवाल जो बहुत लोग करते हैं, अब थोड़ा कम हो गया है पूछना कि जी नॉर्मल फ्लू और कॉमन कोल्ड और एलर्जी से कैसे डिफरेंशिएट करें. सो वी ऑल नो दैट फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आर मोर प्रोमिनेंट but in COVID-19, but in flu there is runny nose and there is stuffiness of nose, and there are less common fever and dry cough in these patients. Similarly, allergies, they have tendency of sneezing, runny nose, and it is mostly seasonal. So you can now easily differentiate. Then there are so many myths. There is a wealth of myths associated with COVID-19, and I'm sure all of you have come across one myth or another. So if I may ask, कोई एक myth बताएं मुझे जो COVID से associated आपने देखी हो. कुछ भी नहीं होगा. This is the best one. सना मक्खी. What else? डॉक्टर साहब लॉट ऑफ विटामिन्स देते हैं. जी जी, ये भी विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन सी. So I will talk about this as well. और एक myth एसोसिएटेड है गर्मियों में खत्म हो जाएगा, सर्दियों का बुखार है. फिर एक एसोसिएटेड है कि ये मतलब इतनी देयर इज लॉट ऑफ कि आप गर्म पानी पिए. फिर आप स्टीम का इलाज भी आपने देखा होगा, एक डॉक्टर साहब की वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी जो स्टीम से कोरोना का इलाज कर रहे थे. फिर क्लोरीन और अल्कोहल की स्प्रे से जो है वो वायरस जो है वो मर जाता है. आप ठीक है. उसके बाद ये भी लोगों के जहन में था कि कोविड इज अ फेटल डिजीज, जिसको कोविड हो गया उसने नहीं बचना, बिकॉज इनिशियली आपको पता है कि डेथ टोल बहुत हाई था. फिर लोगों ने कहा कि जो रेमेडीज उससे प्रिवेंट करने की, जिसमें ये भी रेमेडी में मैं कहती हूँ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लें या सना मक्खी का कहवा ले लें. सो मेनी ऑफ दीज, या हाई डोज विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी ले लें. अच्छा, अब इन चीज़ों, फिर वो गार्लिक का इफेक्ट भी हम हर चीज़ में डाल देते हैं ना, वो भी हमारा बड़ा फेवरेट है. हार्ट डिजीज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, कोविड हो जाए, उसमें भी सब में आ जाता है. सो although these are mostly myths, but myths originate from something. So कोई दिमाग में बात जरूर होती है और उस बात को आप साइंटिफिक रिसर्च और ट्रायल से प्रूव या डिसप्रूव करते हैं. So जो आपने विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी की बात की, विटामिन डी का रोल बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश होता जा रहा है. जैसे जैसे डाटा आ रहा है, हमने देखा कि जो लोग हाई डोज शॉर्ट टर्म विटामिन डी थेरेपी दी गई, उनको कोविड होने के चांसेस भी कम हुए और उनकी डिजीज सिवियर नहीं हुई कोविड. सो हाई डोज विटामिन डी थेरेपी इज इमर्जिंग एज अ गुड प्रोटेक्टिव रोल इन कोविड. और उसकी मैकेनिज्म यही है कि आपको पता है कि ये जो जितने भी विटामिन हैं, सी की बात कर लें, आप जिंक की बात कर लें, विटामिन डी की बात कर लें, दे इंप्रूव योर इम्यून हेल्थ. इन सब का इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल होता है. सो व्हेन योर हेल्थ इज बेटर, यू हैव लेस चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस, लेस चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ वर्स डिजीज. सो दैट्स द ओनली
any role they have. It's not a treatment. मैं ये कहूँगी जी मैं विटामिन डी से कोविड का इलाज करूँगी, so that's wrong. But these are all supportive therapies which improve your overall health. अब मुझे बहुत सारे मरीज नुस्खा आप अगर मेरा कभी कोविड का नुस्खा देखें, मैं एक पैनाडोल लिखती हूँ, एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं लिखती, वो भी बहुत चली थी, आपको याद है? एजिथ्रोमाइसिन की भी अभी आपने देखा होगा एक स्टडी आई है, मेटा एनालिसिस आया जिसमें उसका कोई रोल नहीं निकला है. मैं सिर्फ पैनाडोल लिखती हूँ. अगर कोई पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन लेके आ रहा है तो मैं कहती हूँ आपने शुरू कर दिया तो आप कंटिन्यू कर लें. एंटी एलर्जिक अगर सोर थ्रोट है या गला है, स्टीम में कहती हूँ आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं, यू फील बेटर, यू कैन टेक, सूदिंग इफेक्ट है, वार्म लिक्विड्स ले, आप ठीक हो जाएंगे. मेरे नुस्खे से मरीज बड़ी दफा बड़े परेशान होते हैं, है ना. सो ये क्या नुस्खा है, और एक उनके मुकाबले में एक नुस्खा है जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में हर एक डॉक्टर कहता है कोविड है, प्रिंट दे दो, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, अल्फामेक्टिन. सो पल्मोनोलॉजिस्ट का जी बहुत सारे नेबुलाइजर भी ब्रोंकोडायलेटर भी बहुत देते हैं. उसका ये है कि हम इनिशियली हॉस्पिटल में नेबुलाइजेशन को डिस्करेज करते थे क्योंकि वो एरोसोल जनरेट करता है और वो कर सकता है. लेकिन होम की सेटिंग में अगर पेशेंट्स कंफर्टेबल फील करता है, उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंप्रूव करती है, तो आप दे सकते हैं. जी जी. सीटी स्कैन के बारे में आपने उसमें 2 पेशेंट ऐसे देखे जो एक्सएचएस नॉर्मल है, सीटी सीटी हैज हायर कैपेसिटी डायग्नोस्टिक, उसकी वो बेहतर है, वो स्मॉल इनफिल्ट्रेट्स को. मैंने कल एक पेशेंट देखा, मुझे प्रोफेसर असद ने मेरे साथ शेयर किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने कहा सर एक्सरे तो ठीक लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि पेशेंट पीसीआर पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक माइल्डली था वो. मैंने कहा सर फिर एचआरसीटी करा ले, और एचआरसीटी पे उसके इन्फिल्ट्रेट्स निकल आए. सो एचआरसीटी पे स्कोरिंग सिस्टम भी आ गया है जो कि गेज कर लेता है कि किस लेवल की इन्फेक्शन. सो एचआरसीटी इज बेटर मोडालिटी, मोर सेंसिटिव, एंड इट कैन पिक अप स्मॉलर इन्फिल्ट्रेट्स. बट जिन पेशेंट्स के अंदर सिम्टोमेटिक हो, पैसे ना जाया करें, मैं मरीजों को समझाती हूँ, या तो सिम्टोमेटिक हो या वर्सन हो रहे हो या कोई रिस्क फैक्टर और है, उनमें एचआरसीटी कराए. अदरवाइज बाय सिंपली डूइंग अ सीबीसी एंड सीआरपी लेवल्स एंड डी डाइमर्स यू कैन गेज के की डिजीज कैसी है, which are cheaper and easier available. ये भी मैं अभी बताऊंगी आपको, अभी बताने लगे. आपने हाई डोज विटामिन डी की बात की, कितनी डोज देनी चाहिए उसको? देखिए जो हाई डोज विटामिन डी है उसमें तो 2 लाख यूनिट्स डेली फॉर अ वीक दिए गए, जो स्टडी हुई है. जी जी, हम वीकली देते हैं. मैं वैसे वीकली पेशेंट्स को जो कोविड के हैं उनको 1 मंथ के लिए वीकली दे रही हूँ, लेकिन जो स्टडी हुई है वो हाई डोज 1 वीक के लिए एवरी डे 2 लाख यूनिट्स पे स्टडी हुई है कि वो इनक्यूबेट करता है. सो दैट्स अ वेरी वेरी हाई डोज, 1.4 बिलियन जी. एंड ये स्टडी जो हुई है इसमें ये देखा गया है कि इनको लेस चांसेस एज कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप of catching the infection, and less अगर catch कर लिया है infection तो less chances of going into severe disease. जी जरूर करा लें लेवल, लेकिन आप invariably तकरीबन इंटॉक्सिकेशन में मैंने कोई अपनी जिंदगी में एक आधा ही पेशेंट जाते देखे, मोस्टली पेशेंट्स आपके ऑप्टिमल या डेफिशिएंट या इनसफिशिएंट रेंज के. देखिए हमने भी टॉक्सिक में 100 से ऊपर कोई मैंने बहुत कम 2-3 पेशेंट पिछले 2-3 साल में देखे. हाँ बहुत कम, साल में 2-3 होते हैं ऐसे पेशेंट्स. ठीक है, और वो भी जो एक्सेसिव ले रहे हैं. जी जी. दूसरी अब ये बात हम कर रहे थे एंटीकोएगुलेंट्स की. सो अच्छा दूसरी में बात करी थी कि अगर मरीज लेना चाहता है ना ये विटामिन सी जिंक, तो मैं नहीं मना करती, मैं कहती हूँ ये ले लें, आपने लेना है. लेकिन इन विटामिन सी जिंक का 1 हफ्ता लेने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आप डिजीज के अंदर, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को बिल्ड करते हैं ना, फिर आप उनको उनके ऑप्टिमल लेवल्स करने के लिए उनको महीनों का कोर्स दें इफ यू थिंक दे हैव अ डेफिशिएंसी. इट्स नॉट कि उनको हफ्ते 10 दिन के लिए, ये एंटीबायोटिक थोड़ी है जिसका कोर्स करना है हमने. ओके, सो WHO recommends a follow-up care and low dose anticoagulations for patients who have COVID-19 now, and all hospitalized patients should be on prophylactic dose of anticoagulants. Patients who have severe thromboembolic disease जिनमें D dimers 1000 से ज्यादा हैं या जिनका increasing trend है, उन्हें हम थेराप्यूटिक डोज ऑफ एंटीकोएगुलेशन भी देते हैं. एंटीकोएगुलेशन में थोड़ी सी नई चीजें हैं जिसकी मैं बात करूंगी. पहले हमारे पास आपको पता है टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट एक हेपरिन होती थी, वो हम हेपरिन इन्फ्यूजन में देते हैं. फिर हमारे पास क्लेक्सिन आ गई विच इज अ लो मॉलिक्यूलर हेपरिन. तो हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हैज बेटर रिजल्ट्स, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को आप अगर ओरल फॉर्म में उसका अल्टरनेटिव देना चाहते हैं तो फिर आप रिवोरॉक्साबैन दे सकते हैं. रिवोरॉक्साबैन के साथ एक नई ड्रग भी अभी लॉन्च हुई है, पहले पाकिस्तान में नहीं थी, एपिक्साबैन. दैट इज आल्सो अप्रूव्ड. माउंट सिनाई हॉस्पिटल हैज द एंटीकोएगुलेशन रिजीम, और उनका जो एल्गोरिदम है, इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल, बड़े स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट्स वहां से ट्रीटमेंट एल्गोरिदम्स निकलते हैं. दे हैव एडेड बोथ रिवोरॉक्साबैन एंड एपिक्साबैन टू द ट्रीटमेंट रिजीम.
regime of COVID-19. So COVID-19 and hypercoagulability are, now going together. So whenever we talk about COVID-19, we always keep in mind कि patients के D-dimers के level कैसे हैं, because we all know that it is a predominantly thrombotic complications which lead to worse prognosis of these patients. So एक और patient की बात शेयर करूँगी, हमारे associate professor हैं medicine के भावलपुर से. He was doing well at home, not on oxygen, and he developed stroke. He was already taking prophylactic dose of anticoagulants and he developed stroke. और देन माशाल्लाह ही रिकवर्ड. लेटर ऑन उनके लिए बोर्ड बना, हम यहाँ से मैनेज करते रहे उनको, भावलपुर की टीम भी थी. एंड ही वाज अ यंग मैन, 42-43 years old, no previous history of NA. So he developed a thrombotic complication despite being on anticoagulant therapy and not requiring oxygen therapy. So please keep in mind. अभी कल मैंने राउंड पे एक पेशेंट देखी, मुझे जब पीजी राउंड कराया तो उसने कहा कि मैडम इसका बड़ा पुअर प्रोग्नोसिस है, पेशेंट का GCS बहुत लो है, 3/15 रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. मैंने उसको CPAP लगा हुआ था, मैंने उसका CPAP मास्क उतारा, मैंने कहा इसको देखो इसके प्लांटर्स कैसे हैं. इसने कहा प्लांटर्स म्यूट है. मैंने कहा फिर से चेक करो. चेक किया तो लेफ्ट प्लांटर अप गोइंग था, राइट प्लांटर डाउन गोइंग था. पेशेंट को थोड़ा पेनफुल स्टिमुलस डीप दिया तो पेशेंट ने एक तरफ को हिला नहीं रही थी, एक तरफ था. सो दैट वाज आल्सो अ स्ट्रोक कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्रीज कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ द पेशेंट एंड नॉट ओनली द रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज व्हिच वाज लीडिंग टू डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल. सो प्लीज कीप इन माइंड, स्ट्रोक के पेशेंट्स में जरूर अगर आपको सस्पिशन हो तो कोविड-19 को भी अपने डिफरेंशियल में रखें. सो जब कोविड-19 बीमारी आई तो फिर हम सोचते हैं कि अब इसका इलाज कैसे करें. जब भी कुछ नया आता है तो फिर हम उसके इलाज के पीछे भागने लग जाते हैं. सो 2-3 काम किए गए दुनिया भर में. एक तो जो रीपर्पस ड्रग्स थी, जैसे मैंने इबोला में बताया रेमडेसिविर थी, और कंडीशंस में जो ड्रग थी, इन्फ्लुएंजा में जो ड्रग्स यूज होती थी हमारे पास, जिसमें रिटोनावर है, लिपोनावर है, वो हमने चेक करनी शुरू कर दी. HIV की ड्रग्स जो एंटीवायरल हैं उनके ट्रायल्स हुए. तो 7 रीपर्पस ड्रग्स they were checked. Then 16 monoclonal antibodies, इनका बड़ा अच्छा रोल आ रहा है कि monoclonal antibodies देने से patients जो हैं वो improve हो जाते हैं. And there are 43 different vaccines which are also in phase 2 and 3. So these are all working on different types. So malaria की drugs, chloroquine, hydroxychloroquine, HIV की drugs मैंने बताया, liponavir, ritonavir, और Ebola की drug remdesivir, they were all used to check because they stop the virus replication or blocks the virus. So maybe they are helpful in this virus as well. Antibodies, monoclonal antibodies produce करके उनके कुछ अच्छे results हैं. And फिर हमारे पास vaccines which are actually the real discovery of COVID-19, that is the vaccine. So the treatment guidelines and they keep on updating. There are many different forums which give guidelines to you. WHO is very authentic. Then you have CDC. Then you have NIH USA. हमारा अपना इस्लामाबाद का NIH का सेंटर बहुत अच्छा है, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अब हमने 4th रिविजन की है गाइडलाइंस की. You can all have access to that guidelines. Health department के पेज से you can download. और I'm privileged to be the primary author of these guidelines. एडजंक्टिव थेरेपी जो आप पेशेंट्स को दे सकते हैं, उन सब में वही चीज़ें हैं जिनकी मैंने आपको बात की है कि विटामिन भी दे सकते हैं, विटामिन C का, जिंक का, हाई डोज विटामिन D का रोल. जी बताइए. क्लास में कभी बताना है. हाँ, मैं बताने लगी हूँ. ठीक है. अच्छा, इंटरनेशनल सोसाइटीज़ जितनी भी हैं थ्रोम्बोसिस और हीमोटोसिस की, उसमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हीमोस्टेसिस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस है, एंटीकोएगुलेशन फोरम है, इटालियन सोसाइटी है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है. They all have issued guidelines about coagulopathy and prevention and management of venous thromboembolism in COVID-19, and they all agree that prophylactic dose should be given in the hospitalized patients. Some guidelines note that immediate dose of anticoagulation उन patients में critically जो ill हैं आप दे दें, बजाय इसके कि आप D-dimers का wait करें. And COVID-19 की जो guidelines हैं, they are regularly reviewed and updated, and you must, follow these guidelines. Lab testing में D-dimers, platelet count और prothrombin time and fibrinogen time आपको guide करते रहते हैं. और इन patients के ये coagulation markers जो non-hospitalized हैं ज़रूर करा लिया करें, because if they are high, they are more prone to develop thrombotic and embolic complications. हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स में तो आपने एंटीकोएगुलेशन थेरेपी शुरू करनी ही है. Choice of anticoagulation, I already told you, Clexane is the time-tested one. आप OD डोज में देते हैं 40 या 60 मिलीग्राम की लो मोलिकुलर वेट हेपरिन. अगर आपका पेशेंट प्रोफाइलेक्टिक में है, अगर थेराप्यूटिक में देनी है तो ट्वाइस डे देनी है. जिन पेशेंट्स का किडनी फंक्शन डिरेंज होता है उन्हें हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन नहीं दे सकते, उन्हें हेपरिन अनफ्रैक्शनेटेड पे रखना है. और इसका जो ओरल अल्टरनेटिव आप दे सकते हैं वो रिवोरोक्साबैन है, जो डिपेंड करता है कि पेशेंट को आप किस डोज में देना चाहते हैं. 15 मिलीग्राम
ओडी हम इनिशियली प्रोफाइलेक्टिक डोज में देते हैं और फिर कई दफ़ा हम 20 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम बीडी में भी पेशेंट्स को देते हैं. अच्छा, तो ये this is something which is new in the guidelines about the role of anticoagulant therapy, and there are multiple studies now which are done and global surveys and meta-analysis also available on the role of these novel oral anticoagulants, which हम direct oral anticoagulants therapy कहते हैं, and they have come up with remarkable results, and patients they have participated who in these studies they have shown good results with rivaroxaban. So according to the Venus survey, एक सर्वे हुआ था कि 39% पोस्ट डिस्चार्ज पेशेंट्स में आपने नहीं दिया और 61% पोस्ट डिस्चार्ज में आपने दिया, और जब इनको कंपेयर किया गया तो उनका रिस्पांस बेहतर रहा जिन पेशेंट्स को आपने दिया था. अब एक ये भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप पेशेंट्स को कब बंद करनी है एंटीकोएगुलेशन थेरेपी और कितनी देर के लिए देनी है. So hospitalized patients को I usually continue for 2 to 4 weeks depending upon the D-dimers levels. So 31 to 39 days is recommended in the guidelines to continue them on the anticoagulation therapy. These are prophylactic dose, as I told you, 10 milligram OD या 15 milligram OD भी हम अगर obese patient हो तो देते हैं. Therapeutic में BD dosage में देनी है आपने और 20 milligram OD भी दे सकते हैं. एक्सटेंडेड या पोस्ट हॉस्पिटल वीटी थ्रोम्बोलाइसिस प्रोफाइलेक्सिस आपने उन पेशेंट्स में देना है जिनके डी डाइमर लेवल्स बहुत हाई थे, मोर देन 1000 थे जिनके, उनको ज़रूर रखिए. इनका रिस्क आप डिटर्मिन कर सकते हैं. डी डाइमर्स आर मोर देन 2 times नॉर्मल. दिस इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट्स हु आर इमोबाइल, पेशेंट्स हु हैव एनी हिस्ट्री ऑफ OCP यूज, हु आर वेरी obese, who have history of cancer, and there is no bleeding or tendency or any other platelet dysfunction. You can continue in these patients with either enoxaparin or apixaban or rivaroxaban. So this is all from my side about the plasma that Dr. Nadeem asked. Plasma therapy मैंने thousands नहीं तो hundreds of COVID-19 patients तो ज़रूर treat किए हैं अपने हाथों से. I have never prescribed a single plasma therapy to any patient. In Mayo Hospital, we gave plasma only to one patient, which was also on the insistence of the attendant, and that patient died. So I'm not saying कि plasma therapy ने मार दिया उसको, because some patients have benefited it, but overall इसका कोई बहुत benefit नहीं है. And one problem with plasma therapy is that they cannot be vaccinated. Patients who have received plasma, because they already have the antibodies from some other person, they cannot be now vaccinated. So please discourage these plasma therapy, this injudicious use of steroids, remdesivir जिसका बहुत तड़का लगाने का लोगों को शौक होता है, very expensive drug, not cost worthy, and very carefully select your patients who need hospitalization and refer them early to the hospital. हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन 93 से अब रह रही है, लेकिन देखते हैं हम कि कुछ पेशेंट है 3 दिन में फीवर सेटल हो गया, कुछ पेशेंट है 5 दिन में सेटल हो गया, कुछ पेशेंट है 10-12 दिन में सेटल हो गया, और फिर साथ दूसरे सिम्टम्स ही पॉजिटिव आ गया हुआ है, दूसरे सिम्टम्स भी शुरू हो गए हुए हैं, जैसे सुपर एडेड को इन्फेक्शन आप ही कह रहे हैं. तो क्या ऐसे पेशेंट्स में हम 5 दिन बाद एंटीबायोटिक का कुछ सोच सकते हैं? जी, एंटीबायोटिक बिल्कुल दे सकते हैं. एंटीबायोटिक्स हम फ्रीक्वेंटली इन पेशेंट्स को देते हैं जो कि हॉस्पिटल में दाखिल है. इसमें भी मेरी बड़ी लड़ाई रहती है. मेरा जब राउंड होता है मेरे 2 काम होते हैं. उनको पता है डॉक्टर सोमिया का राउंड है, सिस्टर बड़ी खुश होती है, या मैं अनड्यू हॉस्पिटलाइजेशन को डिस्चार्ज कर देती हूँ कि 4 दिन से स्टेबल है, PCR के इंतजार में बैठे हुए हैं, भाई घर भेज दो. अभी आपका क्वेश्चन ने तो पूछा था, वो भी मैं बता देती हूँ आइसोलेशन कब ब्रेक करनी. दूसरा, जिन मरीजों को कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक्स चल रही होती है, 3-3, 4-4, आप यू कैन नॉट बिलीव, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई हैव सीन अ पेशेंट इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, 11 antibiotics. 11. I'm not lying. 11 different antibiotics in a span of 1 month. 11. 3-3, 4-4 कॉम्बिनेशन 2-2 हफ्ते के लिए चलते रहे. मरीज का TLC ज्यादा है जी, TLC ज्यादा है. हर बात अब पूछो क्यों एंटीबायोटिक दी है, TLC ज्यादा है. क्यों TLC ज्यादा है? स्टीरॉइड ले रहा है भाई. स्टीरॉइड्स आपका फॉल्सली ल्यूकोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है. सो डू नॉट ट्रीट लैब्स, ट्रीट पेशेंट्स. पेशेंट को फीवर नहीं है, पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, पेशेंट को सेप्सिस नहीं है, आप प्लीज एंटीबायोटिक्स को डिस्करेज कीजिए. ये एंटीबायोटिक्स आपके गुर्दे जिगर से ही निकलनी है. मैं सबको ये समझाती हूँ, मैं तो मरीजों को समझा चुकी, ये गुर्दे जिगर से निकलनी है, बैठ जाएंगे ले लेके एंटीबायोटिक. सो एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, एंटीबायोटिक मिस यूज, ये भी एक बहुत बड़ा है. अभी हम इसके ऊपर एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं. एम्ब्रो रीजन की डॉक्टर महा तल्लत हैं, हु इज़ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम को हेड करती हैं कायरो में. उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और स्टूवर्डशिप पे हमें वर्कशॉप कराएं. सो होपफुली हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस आपको पता है
मार्च में है, 26 to 28 मार्च इन कराची मोवनपिक। सो वहाँ हम एक सैटेलाइट, हाँ इंशाल्लाह। सो आप लोगों को सबको इनविटेशन भी है, प्लीज ज्वाइन करें। यहाँ भी वर्कशॉप्स होंगी, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान वर्कशॉप्स होंगी। एंड वी हैव अ वेरी रोबस्ट टीम। इस दफा हमने कराची की टीम को एक्टिवेट किया हुआ है, एंड SIUT से, JPMC से। एक प्रेस्क्रिप्शन देख, मैं तो हैंडराइटिंग भी पहचान लूंगी। आपने ऊपर से काटा है लेकिन मैं तो पहचान लूंगी। अच्छा, दूसरी अभी आइसोलेशन की किसी ने बात की थी, तो वो मैं बता दूं। जो रिकमेंडेशंस हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आइसोलेशन और डिस्चार्ज ऑफ दीज पेशेंट्स की, 10 दिन के बाद अगर पेशेंट को फीवर नहीं है तो वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है। यूजुअली इन्फेक्शियस पीरियड अप टिल 10 डेज होता है, लेकिन अगर 10 डेज से बियॉन्ड फीवर प्रेजेंट कर रहा है या कफ इंप्रूव नहीं हो रही है, अगर तो माइल्ड इरिटेटिंग कफ है तो वो तो आपको पता है कभी कभी महीना भी चलने लग जाती है पेशेंट्स को। सो माइल्ड कफ है या माइल्ड फटीग है तो यू कैन लेबल देम एज रिकवर। सो 10 डेज से बियॉन्ड अगर सिम्टम्स रिकवर हो गए हैं तो यू कैन सेट देम फ्री आइसोलेशन से। अगर 10 डेज के बियॉन्ड जा रहे हैं, अगर 10 डेज से ज्यादा हो गया और सिम्टम सेटल नहीं हुए, देन दे शुड बी आइसोलेटेड। सिम्टम फ्री हो फॉर एटलीस्ट 3 डेज एंड द टाइम पीरियड इज मोर देन 10 डेज। ठीक है, सो अगर 8 दिन पे सिम्टम फ्री है तो नहीं छोड़ना, 10 पे ही छोड़ना है। लेकिन अगर 10 दिन के ऊपर सिम्टम फ्री हुआ है तो फिर 3 डेज आपने उसको सिम्टम्स 10 डेज तक हैं तो 3 डेज और देने और फिर 13th डे पे छोड़ना है। दिस इज द रिकमेंडेशन। PCR की जरूरत नहीं है रिपीट कराने की। जो वैक्सीन अभी आई है साइनोफार्म की, इसकी एफिकेसी कैसी? देखिए, इसकी एफिकेसी तकरीबन 71-72% है डॉक्यूमेंटेड आपके लिटरेचर के अंदर। लेकिन वैक्सीन्स की ये बात आप दिमाग में हमेशा रख लें कि 100% कोई वैक्सीन सेफ नहीं होती। वैक्सीन, और ये भी बात दिमाग में रखें कि वैक्सीन जो है वो आपको डिजीज होने से प्रिवेंट करती है, बट यू कैन बी अ कैरियर ऑफ द डिजीज टू अदर पीपल। सो आपने वैक्सीन के साथ भी ये कुछ करना है। मैं अब चैंपियन बन जाओगे जी मुझे वैक्सीन लग गई है, अब तो मैं आई एम आजाद, मेरा कोई मास्क से कोई ताल्लुक नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग से, मैं शादी पे भी जाना है, सब कुछ। सो वी स्टिल हैव टू फॉलो दीज preventive measures unless and until post vaccination 2 weeks की आपकी full antibody protection ना हो और 70% of आपकी community herd immunity जिसे कहते हैं वो develop ना हो जाए। You are safe, but you need to make everyone safe as well. So your safety is linked with others' safety, and we should all collectively, contribute to the safety of the nation. कोई ऐसे भी side effects नहीं देखे हमारे सेंटर में, तो मेरे में लग रही है हार्डली किसी पेशेंट को फीवर हुआ है, थोड़ी सी लोकल इंजेक्शन साइट पे पेन है, और इसके अलावा किसी पेशेंट्स को। मुझे भी वैक्सीन लगी है, दोनों पहली वैक्सीन जो ट्रायल की मैंने लगवाई थी, सो फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज 5 months ago, सो आई हैड अ फुल ब्लोन फीवर फॉर अ डे। बट ये जो साइनोफार्म, अब मैंने समझा सेकंड डोज इसकी लगवा लेते हैं क्योंकि यही आई है ट्रायल वाली, दोबारा आई नहीं। सो आई हैड एब्सोल्युटली नो फीवर, जस्ट अ स्मॉल पिंच जितनी पेन एंड नथिंग एल्स। जी, 2 वैक्सीन। मैडम, एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में थोड़ा। अच्छा, एंटीबॉडी भी मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं कराने के लिए मरीजों को। एंटीबॉडीज का टेस्ट आप उन पेशेंट्स में जरूर करा लें जो या एसिम्प्टोमेटिक आपको लगता है कि आपने उनका लेवल चेक करना है, या कई दफ़ा पेशेंट्स जो हैं जिनको प्लाज्मा देना है जो कि एक चल रहा है, वो लोग एंटीबॉडीज का टेस्ट कराते हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बच्ची को एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया, वो भी इसलिए कराया क्योंकि उसने नॉर्वे ट्रैवल करना था और शी रिक्वायर्ड इट फॉर ट्रैवलिंग के उसके पास एंटीबॉडीज मौजूद है, वरना देयर इज नो पॉइंट। एंटीबॉडीज का लेवल क्या जो है ये भी नहीं पता कि कितनी प्रोटेक्टिव होती है, क्या लेवल इस थ्रेशोल्ड इज किसी का प्रोटेक्टिव, 10 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, वी डोंट नो। जी, वैक्सीन, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें आता है कि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, व्हाट इज दिस? और वो वैक्सीन वाली है, जो वैक्सीन के ट्रायल के अंदर पेशेंट्स की एंटीबॉडीज चेक हो रही हैं, दैट इज डिफरेंट। जो IgM IgG एंटीबॉडीज पोस्ट इन्फेक्शन चेक हो रही हैं, दैट इज डिफरेंट। तो वो स्पाइक जिस पे लिखा है वो वैक्सीन वाले ट्रायल की है। जो आपकी वैक्सीन है उसमें शौकत खान वाले पहले नहीं कर रहे थे, अब वो स्पाइक वाली भी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि वैक्सीन शुरू हो गई। सेकंड डोज अगर मिस हो जाए तो बाद में लगवा लें, कोई बात नहीं। वो यूके में तो वो 8 हफ्ते बाद लगा रहे हैं दूसरी डोज। यूके में तो अब ट्रायल हो रहा है, हमने देखा है कि मैसेंजर RNA टेक्निक, फाइजर और ऑक्सफोर्ड जो कि दूसरी टेक्निक है, दोनों की कंबाइंड इंजेक्शन लगा के देखते हैं। वो कह रहे हैं जिस तरह की जो वैक्सीन मिलती है सब लगवा लें, हर तरफ से आर्मी करेंगे इसका। मैं बहुत डर रही थी बिकॉज मैंने कैंसाइनो वाली लगवाई हुई थी और फॉर्चुनेटली मुझे वैक्सीन ही लग गई थी, तो आई वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि मैं अब किसी और कंपनी की डिफरेंट वैक्सीन लगवा लूं और वो और आपस में रिएक्ट ना कर जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ठीक था। बहुत सारे पेशेंट्स सिर्फ शेयर एस्थीनिया के साथ आए,
with a couple of days for very mild symptoms of flu and fever. और उसके बाद asthenia for a couple of months चला और उसके बहुत ज़्यादा joint pains and बहुत ज़्यादा body aches. उसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें coagulopathies का भी रोल हो सकता है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Sorry, I forgot. There is a one term which is known as long haulers or long COVID syndrome. Long COVID syndrome is कि patient acute illness से तो recover कर जाते हैं, but some of the symptoms they persist. वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे उनकी खांसी महीनों नहीं जाती है या उनको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन. एक और स्मेल टेस्ट कई लोगों को नहीं जाता, कई लोगों को जो है वो मसल फटीग, बोन पेन्स नहीं जाती हैं. एंड आई हैव सीन 2 पेशेंट्स. अभी एक पेशेंट तो मैंने आपको बताया फंगल इन्फेक्शन वाला, एक और भी DG हेल्थ ऑफिस से हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर, और उनको ही डेवलप्ड सार्कोइडोसिस पोस्ट कोविड. सो ही केम और फिर हमने उनका CT भी कराया, बायोप्सी भी कराई एंड इट केम टू बी सार्कोइडोसिस. वी नेवर नो, प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको प्रीवियसली सार्कोइड हो लेकिन वो अनमास्क हो गया पोस्ट कोविड क्योंकि उनकी कॉफ और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं जा रहे थे. इसी तरह वी हैव सीन मल्टीपल पेशेंट्स ऑफ पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस. सो ये लॉन्ग टर्म, और ये कोट नहीं करना लेकिन आई हैव ट्राइड, मैं क्योंकि ट्रायल कर रही हूँ कॉल्चिसिन का पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के अंदर. सो आई हैव ट्राइड इन 2 पेशेंट्स. एक और हमारे DDO थे, उनको मैंने ट्राई की कॉल्चिसिन. वो भी हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और ऑक्सीजन फ्री करके हमने उन्हें घर भेजा और 2 वीक्स बाद दोबारा उन्हें वही सिम्टम्स हुए, 2 मंथ्स के बाद सॉरी. एंड PCR was repeatedly negative. But he had a full-blown COVID symptoms, so we put him on oxygenation again and respiratory assistance unko rahi. And then I started him on colchicine. And colchicine had good results and he recovered within a week or so. So there are 3 patients that I have tried giving colchicine post-COVID if they have persistent and it has good results. But again, this is not standard of treatment. It has to be a part of trial. So we are doing another trial, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. That's with quercetin. Quercetin एक फ्लेवोनॉइड होता है. ये उसी तरह का ट्रायल डॉक्टर साहब जैसे हमने विटामिन C और विटामिन जिंक की बात की. So quercetin is a flavonoid और it has role in anti cancer therapy. बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी पे होते हैं उनको भी देते हैं. So quercetin and isoquercetin are also new coming up drugs which have protective role in viral inhibition and viral application. So we are doing a trial on quercetin और अभी मेरे पास 5 पेशेंट हो गए हैं उसके, जो हम माइल्ड डिजीज में देते हैं और अर्ली क्लियरेंस ऑफ वायरस में देते हैं. तो आउट ऑफ दिस 5 में 6 हो गए हैं. सो 3 पेशेंट्स का रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन बाकी जो तीनों पेशेंट्स थे वो विद इन अ वीक PCR नेगेटिव हो गए. हालांकि आपको पता है कि PCR कराने के लोगों महीने बाद तक भी पॉजिटिव रहे. सो क्वरसेटिन इज आल्सो कमिंग अप इन द लिटरेचर. यू कैन ऑल सर्च, इंटरनेशनल इसके ऊपर स्टडीज भी हैं. एंड एक और ड्रग है जिसपे हम ट्रायल कर रहे हैं, नेफेमोस्टेट. दैट इज आल्सो एन एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव ड्रग but injectable form में देनी पड़ती है, but it has very good results from a Japanese study. So we are also trying to get that nefamostate over here ताकि कोई novel treatment इसके लिए आए और हमारी इससे जान छूटे, क्योंकि जान नहीं छूटनी. आज कोरोना है, कल एक और वायरस आ जाना है. And very rightly it is said that anything which will kill over 1 million people in the next few years will be a virus or a microbe and not bomb blast or atomic bomb. So we all have to be very vigilant to come up with new drugs, with new treatment modalities to save our planet. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौमिया. इतना खूबसूरत लेक्चर था और हर हवाले से उसको कवर किया है और सब छोटी छोटी आपने चीज़ों को बड़ा हमें प्रैक्टिकली जो आती हैं पेश आती हैं तो हमें उसका बताया. तो कोविड ऐसी चीज़ थी जो हर बंदा इंटरेस्टेड था. हर बंदा जो ख़ास तौर पे कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करता है वो बड़ा इंटरेस्टेड था कि हमें सब चीज़ों का पता लगे. तो बहुत मुश्किलात हैं हमारे यहाँ पे, मैं मानता हूँ. जैसे उन्होंने मैं एक चीज़ पूछना भी कहने लगा था कि अमेरिका में बहुत CT इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ख्याल था कि हर पेशेंट को जो जिसमें लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको एंड में 4-5 दिन 6 दिन वो कफ होती है. तकरीबन हर पेशेंट को कफ होती है. हमारे यहाँ पे सुपर एडिट बना के जल्दी से एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दिया जाता है. कोविड से निकल आया, अब ये इन्फेक्शन हो गया और एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं. तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें थी, समझिए, बड़ा मज़ा है. इसके अलावा मैं डॉक्टर्स कॉन की बात करना चाह रहा हूँ. इंशाल्लाह 4, 5, 6 जून को डॉक्टर्स कॉन होगी और इंशाल्लाह बड़े ज़ोर से होगी. थैंक यू वेरी मच.